So thank you, Minal Madam and Bipin sir. I am very much privileged to introduce to you our featured cosmonaut, Mr. Chandrasekhar Kulkarni जी. तो चंद्रशेखर कुलकर्णी जी जो ओनर है मनाली इंजीनियर्स के, तो इनका बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन, अभी कंट्रीब्यूशन की बात हो रहा था यहाँ पे, राजू सर और बाकी लोगों का बातचीत चल रहा था. तो कंट्रीब्यूशन जो है, इनका कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करना. नॉर्मली लोग सोचते हैं बिल सेव करना तो स्विच ऑफ करो, लेकिन यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को आप स्विच ऑन करो तो बिल सेव हो जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट है. सो चंद्रशेखर कुलकर्णी जी ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है. उनके जुबानी हम सुनते हैं उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में. तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू फॉर दिस ओकेजन. सो सर, कैन यू ब्रीफली जस्ट आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yes, good evening to all of you, all my UJSB partners and state partners, cosmonauts. I am Chandrasekhar Kulkarni. I am from Kalyan. I am basically electrical engineer. I did my electrical engineering from Government Polytechnic Ratnagiri, and later on I pursued AMIE. I have done, I was as a project manager in electrical contracting firm for 8 to 10 years. Then later on I started my own electrical contracting. I took my contractor's license, supervisor's license, and all the other compliances which is necessary for doing electrical contracts for a government, for governments. I started with CPWD and Western Railway, and later on I developed my business with builders and developers. And I started taking electrical projects turnkey contracts for high-rise buildings. And later on in 2007-8 in Kalyan Dombivli Corporation area, KDMC has started one new rule that every new building which is constructed by builders have to have they have to install a solar water heating system on their terrace, and then only these builders will get NOC and CC. So it was a very good opportunity, and I applied for one or two companies, and Rakol, which is a multinational company, they approached me, and they took my interview and they appointed me as a dealer for KDMC area, and I started solar water heating system from 2009. Then I have done many projects of solar water heating systems. More than 12 lakh liters of solar water heating systems I installed in last 8 to 10 years in Kalyan, Dombivli, Titwara, Thana, Shivphata area. In just 3 to 4 years back, there was a new rule in KDMC area that instead of installation of solar water heating system, it is replaced by solar power generation systems. That means पानी गर्म करने का जो सोलर का सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा केडीएमसी ने बताया सब बिल्डर्स को. सो आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो इन एज अ सोलर पावर जनरेशन सिस्टम्स. आई हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 1 megawatt systems in last 3 to 4 years. Very small system like 10 kilowatt, 15 kilowatt, 50 kilowatt in industrial sectors also, and that journey is still continuing. Okay. Yes, sir. Very much impress you. Your growth was that. Yes, sir. So आपके जो प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट जो है, yes, मेन प्रोडक्ट, उसके बारे में जरा आप विस्तार में बताएंगे, ताकि उसके साथ आप उसके यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो भी आप जरा बता दीजिए. यस सर. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, उसका प्रोपोजिशन ऐसा है कि इट सेव्स, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लो या सोलर पावर जनरेशन सिस्टम लो, इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी. अभी सोलर पावर जनरेशन सिस्टम्स में कैसा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन द रूफटॉप और ऑन द टेरेस. मे बी अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, बंगलो, आप सोलर पावर जनरेशन सिस्टम्स बिठा सकते हैं. इसके पहले क्या था कि अबाउट 6 to 7 years बैक इसके इनपुट कॉस्ट बहुत हाई थे. अभी इनपुट कॉस्ट थोड़े कम हुए हैं और इसका पेबैक 3 या 3.5 साल तक आ चुका है. इन शॉर्ट, अगर सोलर पावर जनरेशन सिस्टम आपने 10 लाख रुपए की बिठाई है तो ये 10 लाख रुपए आपके 3 साल में वापस आ सकते हैं बाय ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. और आफ्टर 3 years द लाइफ इज अबाउट 25 to 30 years. इट जस्ट फ्री टू यू.
This is a unique selling point for solar power generation systems. There is another unique product called heat pump water heater, which is also a big saving for electricity bills. In short, अगर क्या होता है कि बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बिठाए होते हैं टेरेस के ऊपर गर्म पानी देने के लिए कस्टमर्स को। अभी ये सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स का ड्रॉबैक क्या है कि वो बारिश में चलते नहीं, जैसे कि अभी बारिश चल रहा है। अभी ये बारिश के सीज़न में वो चलते नहीं क्योंकि सोलर उसमें सनशाइन ही नहीं है, तो पानी गर्म नहीं होगा। और ऐसे टाइम में होटल्स में क्या इलेक्ट्रिसिटी गीज़र्स बिठाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी गीज़र का बिल बहुत हाई आता है। और जहाँ पे सोलर सिस्टम बिठाए हुए हैं और जहाँ पे होटल्स में कस्टमर्स जाते हैं तो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि भले दिन में 12 बजे हो, बाहर बहुत धूप हो, लेकिन मुझे गर्म पानी आना ही चाहिए क्योंकि मैंने पैसा पे किया है। और ऐसे टाइम में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स का ड्रॉबैक हो जाता है। तो ऐसे टाइम में हीट पम्प वाटर हीटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करता है अबाउट 70 to 75%। इन शॉर्ट, अगर किसी होटल को या रेस्टोरेंट को, रिसोर्ट को, इंडस्ट्री को अगर 1000 लीटर पानी की ज़रूरत है एक दिन की, गर्म पानी की, अगर ये पानी आप गीज़र से गर्म कर रहे हो तो यू आर कंज्यूमिंग अबाउट 45 to 50 यूनिट्स पर डे। यहाँ पे मैडम रमा आचार्य है, शी इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शी नोज इट बेस्ट कि कितने हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर यही पानी आप हीट पम्प वाटर हीटर से गर्म करते हो तो आप सिर्फ 15 से 16 यूनिट कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स यू आर सेविंग अबाउट मोर देन 70 to 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर इज अवेलेबल 24/7। और जहाँ पे कमर्शियल गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है। बहुत जगह पे भी इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स इसका अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है जहाँ पे कमर्शियल गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है आपका। यस सर। सभी के लिए, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी काम आता है, बड़े इंडस्ट्री में काम आता है। तो आपके बिजनेस के दौरान आपने बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया होगा, बहुत सारे, उसमें एक मेजर चैलेंज होगा आपको जो आप बताना चाहोगे जिसको आपने ओवरकम किया अपने बलबूते से। Yes. About 2 years back there was a problem for my left eye retina and मैं about 1 साल तक मैं घर के बाहर निकल नहीं पाया था। I was just like a bedridden। तो ऐसे टाइम में भी मेरी टीम जो थी वो काम कर रही थी एंड they were working for me। In that problem I lost my eye, left eye, I can't see with my left eye, but ऐसे सिचुएशन में भी मेरे टीम ने अच्छा काम किया एंड they generated good business for me। Yes, वेरी मच इंस्पायरिंग आपका जो है जो कहना है। तो अभी आप आपके लिए जो एक्सपीरियंस है, मतलब आप मार्केटिंग तो कर ही लेते हो। yes, आप यूजेसबी में भी आप मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी है आपको। तो यूजेसबी में मार्केटिंग के अलावा, बिजनेस के अलावा और भी, उसके अलावा बियॉन्ड बिजनेस और कुछ है, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके बारे में ज़रा शेयर करेंगे। यस सर, एक्चुअली यूजेसबी प्लेटफॉर्म जो है ना, मुझे एज फार एज हीट पम्प वाटर हीटर ये जो प्रोडक्ट है ना, अभी कैसा है सोलर पे काफ़ी कंपटीशन बढ़ गई है, सोलर में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। बट हीट पम्प वाटर हीटर ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें अभी लोगों को मालूम नहीं है, देयर इज वेरी लेस कंपटीशन और अवेयरनेस बढ़ रहा है, लॉट ऑफ मार्केट पोटेंशियल इज देयर। यूजस बीप के जो हमारे पार्टनर्स है, अभी बम्बई में इतने सारे होटल्स है, इतने रिसोर्ट्स है बम्बई के बाहर, जस्ट यानी नॉट बाहर, यानी जो ये कॉस्मो, ये जो एरिया है अपना बॉम्बे का अप टू करजत कसारा, इसमें बहुत सारे रिसोर्ट्स है। वहाँ पे जो हमारे यूजेसबी के जो ऑर्बिटर्स है उनके अगर कनेक्ट्स हो गए होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और जहाँ पे गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हीट पम्प वाटर हीटर वो लोग प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। इट इज सेविंग अबाउट 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन प्रमोट द प्रोडक्ट एंड दे कैन अर्न अ वेरी हैंडसम कमीशन। सो ये मुझे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगता है। इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो बेसिकली आपका आइडियल टारगेट क्लाइंट कौन हो सकते हैं? होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, बिग बंगलोज है। अभी रिसेंटली मैंने 1 साल पहले यहाँ के विले पार्ले में ही एक जगह पे हीट पम्प बिठाया। वो एक वहाँ पे 8वां और 9वां फ्लोर जो है एक ही फैमिली का है, और एक ही यहाँ पे एक 5-6 बाथरूम से एक ही फ्लोर पे, ऐसे 8-10 बाथरूम से वो फैमिली के। वहाँ पे मैंने 1000 लीटर का हीट पम्प उनको बिठा के दिया है। ऐसे भी क्लाइंट्स आप टैप कर सकते हैं। अच्छा,
मतलब पोटेंशियल बहुत है यस इसमें। यस, पोटेंशियल, एनॉर्मस पोटेंशियल इज देयर, हाँ। क्योंकि गर्म पानी लगते ही रहता है लोगों को। और डे बाय डे यहाँ पे बम्बई में इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ एज फार एज अदानी इज कंसर्न, अदानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है। ये अभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है एमएसईबी और इन मुंबई एरिया अदानी, बीएसटी एंड टाटा है। इन सब 4 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से अदानी का टैरिफ इज मैक्सिमम। और बम्बई में अदानी के जो एरिया है वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा Yes. तो अपने जो आपके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे हाँ, उनके लिए मार्केटिंग के लिए आप क्या सपोर्ट कर सकते, जैसे ट्रेनिंग हो गया या मार्केटिंग कोलेटरल हो गया, मतलब किस चीज़ से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केटिंग करें और ग्रो Yes. करें? एक्चुअली इसमें कैसा है कि ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन नहीं है। टेक्निकल डिस्कशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं और उनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन एज फार एज ए स्मॉल कस्टमर्स जो है, जैसे कि बंगलोज ओनर्स है, छोटे होटल से, रेस्टोरेंट से, वहाँ पे सिर्फ उनको समझाना है कि भाई आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और पानी की रिक्वायरमेंट लेके उनको सिर्फ हीट पंप वाटर हीटर प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। इसमें वो जैसे कमर्शियल डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी टेक्निकल डिस्कशंस के लिए आई कैन ऑलवेज गाइड देम एंड आई कैन ऑलवेज हेल्प देम। वेल सेड। यस। सो अभी आपको आपके जो बिजनेस है उसका आपका विजन क्या है, फ्यूचर विजन है? Future vision, because I would like to install about 100 heat pump water heaters per year in Mumbai area, because that much potential is there. ओके, Yes. ग्रेट ग्रेट। तो देखा आप लोगों ने कि इनके पास जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, उसका पोटेंशियल बहुत है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सेव करता ही है, साथ में आपको अर्निंग का पोटेंशियल भी बहुत है। Yes. तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, इनसे आप खुद बातचीत कर सकते हो, और या यूजर्स भी से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप जो है इसके बाद आपने जो पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको कोई सवाल होगा आप पूछ सकते हो अभी। Yes. Sir. Yes sir, actually whatever you said is very correct and that is a fact. क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे कैसा है कि गर्म पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुंबई में ऐसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और हम लोग ज़्यादा ठंडे पानी से ही ज़्यादा नहाते। ये कंसेप्ट जो है ना पुणे सदर्न एरिया में या फिर अदर देन मुंबई एरिया में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही चलता है, और उसकी अवेयरनेस अभी ये 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी भी है। अभी रिसेंटली मैंने रिसेंटली इन बैक 3 to 4 months अबाउट 8 to 10 heat pumps I have installed in Mahaballeshwar, Satara, Pachgani area. In Mahaballeshwar I have installed 4 heat pumps in a line for hotels area, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत होती है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी गर्म पानी की ज़्यादा होती है सर। वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत चलता है, बहुत चलता है। गुजरात यस गुजरात में भी आपका वेरी यस, मुंबई छोड़ के काफ़ी स्कोप है सर, रियली स्कोप है, वहाँ पे लोग लगा भी रहे। मेरा एक सातारा का कलीग है, उसने महाबलेश्वर में उसको कंटिन्यूस 10 से 12 हीट पंप की रिक्वायरमेंट थी। उसने मुझे यहाँ से बोला लिया, भाई तू आके मेरे को 3-4 हीट पंप लगा दे, इतना रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। क्योंकि ये एक्चुअली अभी लोगों के ध्यान में आ रहा है कि डे बाय डे एमएसईबी के टैरिफ इतने बढ़ रहे हैं और फंटास्टिक बिल आता है होटल वालों को। पहले क्या था, हम लोग को समझाना पड़ता था, अभी लोग खुद हमको इंक्वायरी देते हैं कि ये आप कोटेशन भेजो, कोटेशन भेजो। नहीं सर, उसमें कैसा होता है कि ये हीट पंप वाटर हीटर ओनली रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लेकिन इसको हम लोग कैसा करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम करते हैं। एग्जिस्टिंग सोलर वाटर हीटर जहाँ पे बिठाए हैं और जो भी रेनी सीजन में नहीं चलते, वहाँ पे हम लोग ये हीट पंप वाटर हीटर उसको बिठा के ना, इसका आउटपुट हम लोग सोलर वाटर हीटर को देते हैं और हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, तो और भी ज़्यादा पावर से होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जाने पर ये सोलर वाटर हीटर से गर्म पानी कस्टमर को देते रहता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो हीट पंप वाटर हीटर से गर्म पानी किया, उसका आउटपुट सोलर वाटर हीटर को जाता है, और हाइब्रिड सिस्टम से अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो जाता है। ये सिस्टम में हम लोगों ने किए हैं 2-3 जगह पे, हाइब्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं।
सर ये हीट पंप प्रोडक्ट है ना, ये रिवर्स एसी है। यानी एसी कैसा करता है कि यहाँ की गर्मी निकाल के बाहर फेंकता है, हीट पंप क्या करता है, बाहर की पूरी गर्मी एब्सॉर्ब करके पानी को ट्रांसफर करता है। तो एसी का जैसा आपका मेंटेनेंस होता है ना, जैसा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, वहाँ पे कॉम्प्रेसर होता है, कॉम्प्रेसर को साफ वगैरह करते, सेम मेंटेनेंस हीट पंप में होता है, सेम मेंटेनेंस। यानी हीट पंप का मेंटेनेंस करने के लिए किसी भी एसी मैकेनिक को आप बता देंगे ना, तो उसका मेंटेनेंस कर लेगा, जस्ट टू क्लीन द कॉम्प्रेसर, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इट्स अ वेरी लिटल। यस सर, राइट फ्रॉम 300 लीटर के जो डोमेस्टिक सेक्टर में है वो भी अवेलेबल है, लेकिन रेसिडेंशियल सेक्टर में मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी कॉस्ट और उसका पेबैक पीरियड जो है ना ठीक से मैच नहीं होता है। मोस्टली कमर्शियल सेक्टर्स में जो है वो हम करते हैं। यस, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू एवरीवन।